वही सभी प्राणियों के जीवन का स्रोत है। फिर सब में अपनी आत्मा ऐसी आपकी बुद्धि हो जाएगी और आप सबसे प्यार करने लगेंगे। यही धर्म का सार है। Be calm and quiet and try to collect your thought and try to meditate some minutes. Close your eyes and mouth. Relax your body. Try to be tensionless. Visualize endless space full with divine energy. Visualize globe in the space and your body on the globe in the space too. Visualize you are sitting in the ocean of energy. Surrounding your body, energy is flooding. And same energy is entering in your body through your nostrils and giving you life. Your body has very small capacity in receiving oxygen and discharging carbon dioxide, inhaling and exhaling process. But ocean of energy is infinite, and that is the source of your life and life of all beings. So pay your attention on that cause. In Veda it called Prana-upasana. You are worshipping your life energy, meditating on the life energy. Try to take deep breath and watch it. Then you will realize unity in diversity. Numerous beings in diverse form receiving same energy from same source as you are receiving. It means as your life is dear to you, in the same way each being loves his own life or her own life or its own life too. Visualize oneness in all. Realize unity in diversity. Then you will achieve highest happiness and endless bliss. Meditate.
now try to recite 3 times pranava with me. Then I will tell you something about this subject. सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ॐ शान्तिः 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 ॐ। May God bless you all. May He lead you all from darkness to light, from unreal to real, from death to immortality. May He bestow upon you all His divine grace and peace and endless happiness. As I was telling you that source of life is one. If you will meditate properly, if you will understand the root cause of your life, if you will understand this higher philosophic theory of causation, automatically you will realize oneness in all, and you will love others, and really you will be follower of non-violence. Because Hindu Dharma teaches mankind oneness, non-violence and tolerance. These are 3 principles of Hindu Dharma. You should memorize it. Oneness, non-violence and tolerance. Oneness is the aim of life. When one person realizes oneness in all, he will be one with Supreme Cause, and he will achieve highest good. He will achieve emancipation. He will be free from death and birth. He will be free from, wandering so many species, and he will be free from grief and sorrows and calamities. This oneness in all. But how one can be able to realize oneness in all? When a person will follow path of non-violence. Path of non-violence means to love all. Realize this truth. A great seer Vyasadeva told, Sruyatam dharma sarvaswam srutva chaiva avadharyatam atmana pratikulani paresham na samachari. Try to listen. Pay your attention and listen. In base of religion, base of all dharmas, base of all religion. What is the base of our religion? He told, Atmana pratikulani paresham na samachari.
Whatever is not dear to you, whatever is not dear to you, don't behave with others. Don't do with others. Don't give to others. Okay? This is the gist of all dharmas. As your life is dear to you, and feel, realize and know that each person or each being, every insect has same law with its own life too. When you will realize the truth, then you will be really follower of non-violence. But in the beginning of this path, it is very hard to walk ahead. There is one thing more essential, that is tolerance. If you will adopt tolerance in your own life, automatically you will be follower of non-violence. Tolerance means sometimes you are seeing very awful situation, and that situation comes in your own life and you become worried. At that time, you want to be free from that situation and you are doing something, whatever is really not doable. Only for yourself, making yourself free. So, when you will accept tolerance, in our language that is called tapa, very great thing. Automatically, you can tread on divine path and you can follow this path of non-violence. This is very essential. So be aware, oneness, non-violence and tolerance. These three are base of Hindu life. Okay? And due to this, we suffer a lot. Okay? I will narrate a small story. When Portuguese entered to India, okay, there were all followers of non-violence and tolerance, all these philosophies. Okay? When they enter in India, they reach in Goa, and Goan people welcome them because this was great teaching. Guest is incarnation of Godhead. Atithi Devo Bhava. Guest is a incarnation of Godhead. Welcome him like a God. And Indian people welcomed them. Okay? When they went there, they give place, they give food, as we are honoring our guest. And after some day, they saw everything. They have nothing to, fight, but they have everything to give and offer to others. And these Portuguese people saw, oh, they are very wealthy people, very wealthy. And they took their gun, okay? They killed all family men and become owner of that house. They did it. Our history, is a great proof. So, I was telling you that being follower of non-violence, being follower of tolerance, being believer of oneness, we suffer a lot, but still we are survived due to this philosophy. Because we believe in immortality. So if you believe in immortality and immortal truth is always with you, then no power can destroy you. You know, where their Muslim invaded, that country finished now. There is no Babylonia, oldest Babylonia. There is no Chaldea. There is no Mesopotamia. There is no Sumeria. There are so many countries.
And there is India, not only 1 and 2,000 years old India, you will find millions of years old India still now existing in their same natural form. Why? Because we are believers of immortality. And we love all as our own soul, as our own self. We are not only talking about love, but we are behaving. Okay? This is not our motive only, this is our life. We are leading. Due to this country, that country become immortal. And this race become immortal. This philosophy become immortal. Okay? So, my dear, you are follower of that highest philosophy and culture and path. Okay? Be aware about that truth and recognize your own real nature, and you will be beacon for mankind in the world. Whatever nowadays world wise men are searching, your forefathers were doing since unknown times. They are leading same life. Okay? So this vegetarianism is not new for you people. Because in our country, if anybody talk non-vegetarianism, then people will be surprised. What he is talking? Because their natural life is vegetarian life. We love a plant as our own self. Not only human being, not only bird, not only animals. Okay? In our Veda mantra, there are some hymns. You must try to, if you want to get a fruit, you must try to first pray that tree. Okay? In Veda, such kind of hymns are there. If you want to get a fruit from any tree, you must try to pray first and get permission from that tree. Then you pick that fruit. And such kind of mantra are in Veda. And that Veda is our base of life. That Veda is our eternal guide of life. That Veda is our main root of our culture, or religion, or philosophy, or everything. We are breathing Veda in practical form, not only talking Veda, about Veda. Okay? So it was a very great thing. Your ancestors, your forefathers, your parents also followed that life. But now we are such kind of, atmosphere. We are living in such kind of atmosphere where vegetarianism is very, very strange thing. And mostly people are not fully aware about that. Nowadays, when scientists are saying this is harmful, this is harmful, this is harmful, then we are thinking, oh, this is harmful, really. One day I was giving my talk, London, and one person asked me that I read in our book that our old people were eating flesh. These were very dear food for them. Why you are objecting now? I told that, my dear, if you are follower of Darwin method theory, Darwin theory, do you know Darwin theory? Yeah. Because chimpanzees are our ancestors, our forefathers. Monkeys are our forefathers. I ask, can you tell me that any race of monkey is meat eater? If your forefathers are monkeys and monkey were pure vegetarian, then how your forefather become meat eater? You can think about it. According to Darwin also, not according to Veda. According to Veda, our great forefather was seer. In Bhagavad Gita we are reading, Chatvaro manavastatha,
महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता एषां लोकिमा प्रजा. Lord Krishna stated that great seers and Manus were my own sons, and from those, these all humanity took birth. So these all humanities are children of great seers and great Manus. And those great seers were very pious people. Okay? They were living in Sato Yuga. They were not living in Kali Yuga. Okay? This eating flesh and bone and chewing some odd dirty thing. This is the result of Kali Yuga, not Sato Yuga. If Sato Yuga will prevail in your mind stuff, then automatically you will hate. You will hate, automatically you will hate. Okay? You don't think that Kali Yuga is any, we are thinking this is Kali Yuga. Okay? And yugas are like a Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, this, as we are counting day. Only this is speculative thing. In the same way, these yugas are true. But really, what Sat Yuga is, what Kali Yuga is, what Treta Yuga is, what Dwapar Yuga is, this is related with our mind stuff. Okay? This is related with our state of mind. If your wisdom is pure and bright, if you are living in Sato Guna, yes, there is Sat Yuga for you. You will feel everywhere goodness, brightness, holiness. You will love purity. Okay? Automatically, such kind of feeling will appear in your heart and you will love all beings. That is called Sat Yuga. Okay? When little Rajoguna will enter in your mind stuff, then automatically you will feel, oh, you must try to work for others, must try to help others. Okay? When such kind of ideas will come in your heart, then you are living in in Treta Yuga. That is Treta Yuga. Okay? When you are working for others, not for yourself. That is Treta Yuga. And then after that, Dwapar Yuga come in your life. When a little Tamo Guna, inertia, okay, and Rajo Guna, activeness, will come in your mind. There are little Sato Guna, little light, little knowledge. Then you will be more selfish than, well-beings for others, well-doers for others. That is called Dwapar Yuga. But when you will be totally selfish, you will think about your stomach and stomach of your family man. Okay? Then, my dear, you will live in Kali Yuga. Okay? At that time, you will go approach your doctor, and doctor will say, yeah, okay, you are going to be very, very big. So I think that you must take egg and some fish too. You say, I am vegetarian. Then you are going to die, my dear. If you want to save your body, your life, then you must eat it. Then you will love your body automatically. And for protecting your body, you will do whatever doctor is suggesting you. If you are not doing that, then in your mind will be, oh, doctor told me one day I will die very soon. But who knows you will die? You will die when? Is any power can ensure you that you will never die if you eat this and that? No. No power is there. But, my dear, all these, activities are a result of Kali Yuga. Kali Yuga means your dirty mind, your selfish nature, okay? And your polluted intellect. Your polluted intellect, your dirty mind, your selfish nature, creates Kali Yuga for you. Then you will suffer. I don't think that any power in the world, maybe God or Father of God too, can save your life from suffering. Okay? No power can save. Be aware about this too. Okay, I told many things now. I will speak now in Hindi because there are many people who are talking about seeing my face only.
अच्छा, बहुत अच्छी बात। इतनी बात तो मैंने उन लोगों को बता दी जो हिंदी नहीं जानते। सारी बात यदि मैं अंग्रेजी में ये घंटे बोल दूं तो फिर आप लोग में से बहुत लोग कहेंगे कि मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। लेकिन वो यंगस्टर्स, those who don't know Hindi, okay, I told this fact for them and I inspired their mind towards our higher tradition, Vedic culture, Vedic tradition, Vedic philosophy. They should feel proud on it. And they can follow this divine path, whatever path was followed by their own forefathers. And I think this is the need of era. And nowadays people are wanting it, searching it. Those people whose forefather was only meat eater and drinker, they don't know what vegetarianism was. They are searching now. Okay? They are coming on that path, whatever we were trading since unknown times. Okay? So my dear, okay, may God bless you all. अब मैं उनके लिए कुछ बातें बताऊंगा जो अंग्रेजी नहीं जानते, ठीक है ना? मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब मुझे पता चला कि यहाँ शाकाहारी भोजन के ऊपर कोई सेमिनार या इस प्रकार का विचार गोष्ठी होने जा रही है। यद्यपि वर्तमान काल में ये रोग धीरे धीरे भारत में भी बढ़ रहा है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत में केवल 20% लोग थे, याद करो मेरी बात को, केवल 20% लोग थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था मांस खाने वाले, केवल 20%। और वो कौन थे? उसमें अधिकांश तो निम्न श्रेणी के लोग थे और कुछ उसमें से वो राजपूत थे जो कि युद्ध के लिए अभ्यास करते थे, जिनके मांस खाने की व्यवस्था तो नहीं थी लेकिन वो शिकार करते थे और खाते भी थे। लेकिन इस समय आपको जान करके खुशी होगी कि भारत में मोर देन 60% लोग मांस खाने लगे हैं। खुश हो जाओ, अरे चलो दुखी हो जाओ। और ये देर किसकी है जानते हो? भारत का दुर्भाग्य उदय हुआ भारत की स्वतंत्रता के साथ। एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में भारत का शासन आया, उसने अन्न की कमी को पूर्ण करने के लिए लोगों को निर्देश दिया कि यदि अन्न पूरा नहीं है तो तुम मांस खाओ, मछली खाओ, भेड़ खाओ, बकरे खाओ, मुर्गे पालो, सुअर पालो, ये खाओ। क्योंकि उसका शरीर तो भारत का था लेकिन उसकी बुद्धि जो थी, उसका मन जो था वो यूरोपियन था। उसको भारत का कुछ पता नहीं था कि भारत क्या है और भारत की संस्कृति सभ्यता क्या है। उस व्यक्ति की देन है। दुर्भाग्य से भारत का एक सही में प्रतिनिधि आया, उसका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। जब 65 में युद्ध शुरू हुआ पाकिस्तान से तो अमेरिका ने कहा कि तुम युद्ध रोक दो, नहीं तो हम तुम्हें गेहूं नहीं देंगे। उसने अपने फूड मिनिस्टर को बुलाया, पूछा भाई अपने यहां कितने गेहूं की कमी है? उन्होंने बताया कि अपने को 7 लाख टन गेहूं की कमी है। 7 लाख टन गेहूं और चाहिए। उसने कहा कि इतना बड़ा अपने पास खेत है, इतनी बड़ी अपने पास भूमि है, इतनी उपजाऊ है, हम अपने लोगों के लिए भोजन तैयार उत्पादन नहीं कर सकते? उसके फूड मिनिस्टर ने कहा कि साहब अभी तक इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। अभी तक तो हम बड़े बड़े बांध बनाने, बड़े बड़े कारखाने लगाने, भारत को यूरोप बनाने के चक्कर में पड़े हुए थे। भारत तो एक कृषि प्रधान देश है, कभी किसी की तरफ किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। उसने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। भारत को नया नारा, जय जवान जय किसान। उसने डाइवर्ट किया अपनी सारी योजना को और किसानों को वो प्रोत्साहन देना शुरू किया।
और अपने फूड मॉनिटर से कहा कि अच्छा ये बताओ कि यदि भारत के लोग सप्ताह में एक दिन भोजन न करें तो साल में कितना अन्न बचा सकते हैं। आप देखिए, सूझे उसने काउंट किया। उसने कहा कि यदि एक दिन भोजन न करे भारत के लोग तो 7.5 लाख टन अन्न बचा सकते हैं। क्या समझे? भारत की जनता यदि एक दिन भोजन न करे तो 7.5 लाख टन अन्न बचा सकती है। तो उसने कहा कि वाह, फिर हमारे पास तो सरप्लस है। और उस दिन उसने रेडियो पर अपनी जनता से अपील की कि सप्ताह में एक दिन न खाने से तुम मरोगे नहीं, बल्कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मशीन जो चलती है उसको भी एक दिन खाली रखा जाता है, ग्रीस दिया जाता है, तो एक दिन तुम अन्न न खाओ। भारत की जनता ने उसकी आज्ञा को सिर पर धारण किया, क्योंकि सबसे पहले उस व्यक्ति ने नियम लिया कि हमारे घर में एक दिन भोजन नहीं बनेगा। और उसका परिणाम यह हुआ कि उसने अमेरिका से कहा कि तुम अपना गेहूं अपने पास रखो, मुझे तेरे गेहूं की जरूरत ही नहीं, मेरे पास तो सरप्लस गेहूं है, मेरे पास सरप्लस गेहूं पड़ा हुआ है। तुम ये ना सोचो कि मैं गेहूं के तुम्हारे भूखा हूं, युद्ध ऐसे चलेगा। और चला, लेकिन उस व्यक्ति को ले जाकर के ताशकंद में मरवा दिया गया अचानक, बिना कारण का, क्योंकि भारत एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ गया था जहां से लोगों की गुलामी से मुक्त होने का रास्ता था। दुर्भाग्य कहिए, वो मार दिया गया, फिर उसी प्रकार के संप्रदाय के लोग आकर शासन में बैठ गए, लेकिन उसका जय जवान जय किसान की स्थिति चलती है। आपको एक जानकर आश्चर्य होगा कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था, पूरे भारत की आबादी 40 करोड़ थी, उसमें से 7 करोड़ पाकिस्तान बन गया था, 7 करोड़, और 33 करोड़ हिंदुस्तान था। लेकिन 33 करोड़ को खाने के लिए अन्न नहीं मिलता था, और वो अमेरिका कनाडा से लेकर के भीख मांगते थे या खरीदते थे। और मैंने वो गेहूं देखा है कनाडा में जो भारत में जाया करता था, जिस गेहूं का रस निकाल लेते हैं और उसको समुद्र में फेंक देते हैं या पशुओं को खाने के लिए फेंक देते हैं। वो लाल रंग का वही गेहूं उन दिनों कनाडा दान में भारत को देता था, और उसी का आटा भारतवासी खाकर जीते थे। बात समझे? लेकिन उस महापुरुष के निर्देश के परिणाम में आप देखिए, जो भूमि 33 करोड़ व्यक्तियों को भोजन नहीं दे पाती थी, वही भारत की भूमि है। आज भारत में 90 करोड़ लोग रहते हैं। कितना रहते हैं? 90 करोड़ लोग। अभी जो नई जनगणना हुई है, उसका एक कथन है कि भारत में 90 करोड़ लोग रहते हैं और अपने खाते हैं, और 3 वर्ष का भारत में यदि अकाल पड़ जाए, 3 वर्ष तक कोई अन्न न पैदा हो, तो भारत के पास 3 वर्ष के लिए गेहूं और चावल सुरक्षित हमेशा रहता है कि 3 वर्ष तक हमें किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, और उसके 90 करोड़ व्यक्तियों के लिए। और उसके पश्चात हम हर साल 5-10 लाख टन गेहूं और चावल दूसरे देशों को दे रहे हैं। 5 लाख टन चावल हर साल हम रसिया को भेजते हैं। जितने हमारे ईस्ट एशिया के देश हैं, सबको थाईलैंड लेकर के, मलेशिया लेकर के, इंडोनेशिया लेकर के, उन देशों को हम चावल सप्लाई कर रहे हैं, बेच रहे हैं। हमारे पास इतना सरप्लस हो रहा है। ये बात समझे? वही भूमि है जो भूमि 33 करोड़ के लिए अन्न नहीं देती थी, वही भूमि आज 90 करोड़ को खिलाते हुए भी दूसरों को भी पोष रही है। इसलिए मैं ये बात आपको इसलिए बताया कि ये वे ऑफ थिंकिंग कैसी वे ऑफ थिंकिंग है। एक व्यक्ति ने कहा अन्न नहीं है तो मुर्गे खाओ, सुअर खाओ, भेड़ खाओ, बकरे खाओ, पालो। इसके लिए गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए दिए लोगों को, मछली पालो, खाओ। और एक व्यक्ति ने कहा कि यदि अन्न नहीं है तो एक दिन का व्रत कर लो। ये क्या है? दिस इज वे ऑफ थिंकिंग। ये बात समझे? ये एक दिन का व्रत करने का जो सिद्धांत है, ये तो है भारतीय दिमाग की उपज। और
मुर्गे खाओ, बकरे खाओ, भेड़ खाओ, सूअर खाओ, ये यहाँ की देन है। क्या करोगे आप? दुर्भाग्य से भारत स्वतंत्रता के बाद ऐसे ही दूषित वृत्ति वालों के चंगुल में रहा, जहां से उसको यही सीख मिलती रही, और उसका परिणाम यह हो गया कि भारत में 60% लोग मांसाहारी हो गए, जबकि भारत में हजारों विद्वान महात्मा, आप तो जानते हो, आप लोगों ने देखा भी होगा, हमारे ऐसे हजारों विद्वान वहां पर गली गली में घूम करके, हर एक शहर में घूमकर, गांव गांव में घूमकर, मोहल्लों में घूम करके प्रचार कर रहे हैं, धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन जितने स्कूल हैं, जितने कॉलेज हैं, जितनी यूनिवर्सिटियां, वहां वो शिक्षा मिलती है। क्या किया जाए? हमारी शिक्षा का कोई असर नहीं हो रहा? हो रहा है, तभी वो 40% अभी बचे हुए हैं। यदि ये शिक्षा वहां न होती तो अगला 100% यहां की तरह वहां भी हो जाते। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 1973 में एक बार में लंदन में एक कैथेड्रल में मेरा व्याख्यान हुआ, और वहां पर एक लेडी उठी जो वहां की एजुकेशन की सेक्रेटरी थी, मिनिस्ट्री की। उसने मेरे से कहा, मेरी बात सुनने के पश्चात, कि स्वामी जी, जो कुछ आपने कहा है ये आपके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन ये भारत का विचार नहीं है। मैंने उससे पूछा, आपका क्यों देवी? वो कहती है कि मैं यहाँ की एजुकेशन सेक्रेटरी हूं, मैंने भारत की यूनिवर्सिटियों का विजिट किया है, जहां मैं गया वहां पर मेरे स्वागत में लोगों ने मांस और मदिरे लेकर के हमारा स्वागत किया। आप कैसे मान लें? और वहां के लड़के लड़कियां हमारे स्वागत में इंग्लिश डांस करके हमें रिझाते रहे। आप कैसे कर रहे हो? मैंने उससे कहा, देवी तूने ये सुना है कि इंडिया इज लिविंग इन विलेजेस, नॉट इन सिटीज। These cities are projection of you people, and these education centers are started by you people, and nowadays teaching are going same whatever you left there, okay, because our government become follower of you people. But if you want to see real India, you must visit our countryside. In our villages you will find still now 82% Indian are living in villages. They are living very pious life, okay. They are worshipping animal as their own self. We are worshipping not only cows as our own mother, but we are loving all animals, all birds. जब मैंने उससे बात कही तो चुप हो गई। हम कहा, किसी समय जब मैं भारत रहूं तो आना, मैं तुम्हें पूरा गांव दिखाऊंगा कि किस प्रकार के लोग रहते हैं। क्या कहें? उसकी बात तो मैंने काट दी, लेकिन अपने को तो मैं जानता था कि जो मैं कह रहा हूं ये ठीक है, गांवों तक तो भी नहीं पहुंचा है, लेकिन शहर तो ऐसे भ्रष्ट हो गए। क्या कहा जाए? इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था। लेकिन एक सुखद समाचार ये आ रहा है अब कि भारत के लोग इतने दिन में ही अब इससे धीरे धीरे उब रहे हैं और टर्न कर रहे हैं। देख लिया कि हमारे विनाश का कारण, क्योंकि वहां तो अभी ये न्यू बात थी और यहां ये पुरानी हो गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विदिन 20 years, okay, 60% American become vegetarian, not only, no, less, 60%, and among those 40% are pure vegetarian. Pure vegetarian means they never touch egg, vegetarian egg. Nowadays there is a vegetarian egg too. So they never touch vegetarian egg. They never eat fish, because in these countries fish and egg are considered as a vegetarian thing. So they become pure vegetarian, 40%, and 20% are, not pure vegetarian in our mind, but they are vegetarian. So more than 60% American become vegetarian, because you will find every small town in America, and there is one yogi is sitting there and teaching meditation and yoga. And if you learn yoga, if you learn meditation, automatically you will run away from all these filthy things. Okay? एक दिन एक मेरा शिष्य अमेरिकन
मुझे लेकर के जा रहा था कार में, मैं यूनिवर्सिटी में बोलने जा रहा था, कैंट यूनिवर्सिटी में। रास्ते में उसने मेरे से पूछा कि गुरुजी आप ये बात करते हो, बात सारी समझ में आ जाती है मेरे को, ये अंडा खाना क्यों आप बुरा समझते हो? उसने कहा कि मैं जब नहीं खाता, लेकिन मेरे से लोग पूछते हैं तो मुझे उत्तर देना पड़ता है, तो मैं केवल अपने नॉलेज के लिए जानना चाहता हूं। तो मैंने उससे पूछा, हम का अंडा कोई खाने वाली चीज है? अंडा कहीं पेड़ में लगता है? बोले नहीं। हम का कहां से पैदा होता है वो? मुर्गी के रज से, रज जिसे कहते हैं रज, हाँ, मुर्गी के रज का वो एक गोला सा परिणाम है, और वो रज जो होता है वो पेशाब ऐसा ही होता है, और क्या होता है, मूत्र ऐसा ही होता है, उसी का परिणाम है, धातु वो भी है। हम कहा उसको तुम खाने वाली चीज कहते हो क्या? हम कहा डू यू वांट टू नो मोर? वो कहता नहीं, अब चुप रहो, उल्टी आ जाएगी मेरे को। वो कहता आई एम थिंकिंग हाउ पीपल आर ईटिंग दैट, इफ यू टेल मोर देन आई विल वॉमिट हियर, डोंट वरी, आई एम नॉट एक्सप्लेन मोर दैट। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि मनुष्य के जीवन में आजकल जो दूषित संस्कार आए हैं वो कुसंग के परिणाम है। जैसे मैं भी आपको बता रहा था कि मनुष्य मूल से मांसाहारी नहीं है। पश्चिम के लोगों ने आपको यही बताया कि कैसे वो पत्थर से मारकर पहले शिकार करता था, फिर पत्थर की जगह उसने पत्थर को घिस करके चाकू बनाया, उससे मार के शिकार करने लगा, फिर कैसे वो धनुष बाण बनाया, मार के शिकार करने लगा। यहां तो कहानी शिकार से शुरू होती है, जैसे आदमी जन्म से मां का ही शिकार करता रहा है। मैंने पूछा यदि मनुष्य जन्म से शिकारी होता तो उसकी मां के स्तन में दूध क्यों आता, वहां मांस का लोथड़ा क्यों नहीं दे दिया, तुरंत चबा जाता हो? लेकिन ऐसा तो नहीं है। जैसे मां के स्तन में दूध आता है, बच्चे को पालन करने के लिए दूध क्या है जानते हो? वो वात्सल्य का परिणाम है, भोजन का परिणाम नहीं है। भोजन करके दूध आता तो जितने गाय भैंसे सब पिलाओ, बिना बच्चे के दूध आने लगेगा, वो वात्सल्य का परिणाम है। और वो बच्चे के लिए एक मैं गाय खरीदी, गाय, मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। एक गाय खरीदी, कुछ वर्ष पहले की बात है, आश्रम में, और वहां पर वो गाय लेकर के जो आ रहा था हमारा आदमी, उसने बच्चे उसके साथ ही छोड़ दिया। तो जब उसका थन इतना भर गया, अब गाय के थन में करीब 8 किलो 10 किलो दूध था, अब 10 किलो दूध जब भर गया उसकी गाय के थन में, तो गाय खड़ी हो गई, चलाने जाए उससे। वो व्यक्ति जो था उसको दूहना नहीं आता था, अब वो क्या करे, उसने बच्ची छोड़ दी कि चलो बच्ची पी लेगी। जब वो चलाने जब गया गाय से तो थन उसका भर गया, तो किसी ने कहा कि तुम इसे क्यों ले जा रहे हो, तो चल नहीं सकती, इसके थन में दूध भरा, देख नहीं रहा तुम, दूध निकाल ले। वो कहता मुझे तो निकालना नहीं आता। कहा निकालना नहीं आता तो बच्ची छोड़ दी। उसने बच्ची छोड़ दी, दूध पी गई। जब दूध पी करके बच्ची वहां आश्रम में पहुंचते पहुंचे बच्ची तो उलट गई। हमका क्या हुआ भाई, कैसे मर गई बच्ची? वो कहता अच्छी भली तो आ रही थी। फिर उसके साथ एक आदमी था, उसने कहा गुरुजी इसने दूध पी लिया ज्यादा, अब बच्ची है, उसको पशु है, उसको पता नहीं कितना दूध पीना चाहिए। अब यदि एक सप्ताह की बच्ची और 10 किलो की जगह यदि 5 किलो दूध पी जाए तो मरेगी नहीं और जिएगी क्या? क्या राय? यदि दूध नहीं निकालो तो गाय मरती है, और दूध बच्ची को पिला दो तो बच्ची मरेगी, फिर क्या करोगे दूध लेकर? काऊ के थन में, गाय के थन में भगवान ने दूध किसके लिए दी है? मुनियों ने, ऋषियों ने अंदाज लगाया कि दूध केवल मां के स्तन से मिलता है और कहीं से नहीं मिलता। तो मां है, उसके हृदय में सहज वात्सल्य। आपने एक शब्द सुना होगा संस्कृत में वात्सल्य। वात्सल्य शब्द कैसे बना जानते हो? वत्स से। वत्स माने बच्ची, बच्चा। गाय के बच्चे को वत्स कहते हैं, ये मनुष्य के बच्चे को नहीं कहते, याद रखना है। मनुष्य के बच्चे को वत्स नहीं कहते, वत्स का ही बिगड़ा हुआ है बच्चे, बच्चे का ही बिगड़ा हुआ बच्चा और बचिया, बचिया और बचवा, तो उसमें जाना चाहो। हाँ, ये बचिया बचवा जो शब्द हो ये संस्कृत के वत्स शब्द से बना है, और वत्स है गाय के बच्चे को संबोधन करता, इसीलिए वात्सल्य बना। वात्सल्य माने वह वात्सल्य कहा जाता है जो अपने बच्चे के लिए मां के हृदय में प्यार उमड़ता है। जब बच्चे के लिए मां के हृदय में प्यार उमड़ता है तो उससे दूध टपकने लगता है। देखा,
रामायण में आप देखिए, तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब भरत ननिहाल से आते हैं, कौशल्या माँ के पास जाते हैं, कौशल्या भरत को देखते ही उनके स्तनों से दूध गिरने लगता है। थन पे श्रवण नयन जल छाए, उनके स्तनों से दूध गिरने लगा और उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगे भरत को देखते ही, जैसे बछड़े को देख करके गाय दूध गिराती है। यहाँ एक बार मैं यहाँ से ये एम्स्टर्डम से थोड़ी दूर पर एक मेरे शिष्य रहते हैं, पाताले, गौतम पाताले, उनके यहाँ मैं ठहरा हुआ था। उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी यहाँ पर गौ की मार्केट लगी है। तो मैं गऊ का प्रेमी हूँ, अपने आश्रम में मैंने 70 गाय रख रखी है, और जहां मैं बाहर जाता हूँ कोई सुंदर गाय देखता हूँ तो उसको मैं ले आता हूँ खरीद करके अपने यहाँ रखने के लिए। प्यार है मेरा, बहुत प्यार है। वैसे जन्म से ग्वाला तो नहीं पैदा हुआ था ब्राह्मण के यहाँ, लेकिन गाय चलाने का काम किया था। तो गऊ से प्यार है, तो हम गाय चलते हैं, देखते हैं। तो हम गए वहां देखने, वो गायें जो बैठी थी ना, वो बैठे बैठे उनका दूध निकल रहा है। एक गाय बड़ी सुंदर दिखाई दी, उसके पास में गया। हम कहा गाय कितनी कीमत की है? उसने कहा 2000 गिल्डर की। हमने कहा यदि इंडिया में होता तो जरूर खरीद लेता, लेकिन मैं इसको यहां से कैसे ले जाऊंगा? इतनी प्यारी गाय, खड़े खड़े उसके थन से दूध गिर रहा, अपने आप गिर रहा। मेरे कहने के प्राय उसको कहते हैं वात्सल्य। तो गाय तो ममता की मूर्ति है, इसीलिए हमारे ऋषियों ने गऊ को मां कहा। गऊ से ज्यादा तगड़ी भैंस होती है, देखा ना? उसको तो हम मौसी भी नहीं कहते, मां। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारे ऋषियों ने हमें एक ऐसी दृष्टि दी कि एनिमल के साथ, पशुओं के साथ अपना रिलेशन स्थापित करो, रिलेशन, अपना संबंध स्थापित करो, और उनके जीवन को भी तुम ऐसे समझो जैसा तुम्हारा अपना जीवन है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। जो तुम्हारी आत्मा के प्रतिकूल है तुम दूसरे के साथ व्यवहार में न लाओ। सूर्यताम धर्म सर्वस्वम, ये धर्म का सर्वस्व है। This is the gist of essence of religion. Whatever is not dear to you, don't do with it. जो तुम्हें प्रिय नहीं लगता उसको दूसरे के साथ मत बरतो। और ये यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसमें हिंदू होने कोई जरूरत नहीं है, मनुष्य होने की जरूरत है। If you are human being, if you have wisdom, you have intellect, if you have heart, then you follow this philosophy. Either you are Hindu, or you are Muslim, or a Christian, or whatever you are. Never mind. If you are a human being, then this higher philosophy is for you. Because you have wisdom, you can understand, you can realize, you can recognize the truth in your own life. No need to speculate. जरूरत नहीं तुम कल्पना करो, तुम इसे जान सकते हो, अनुभव कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो अपनी इसी लाइफ। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि ये जो हिंदू धर्म में शाकाहार, शुद्धाहार, भगवान ने गीता के 17वें अध्याय में आहार की व्याख्या की, आहार की व्याख्या की। और भगवान ने सबसे पहले कहा कि देखिए, श्रद्धामयो अयम पुरुषा यह श्रद्धा स एव सब। कहा मनुष्य जो है वो श्रद्धा में है, जिसकी श्रद्धा जैसी है वो वही है। कहा श्रद्धा क्या होती है? कहा श्रद्धा होती है सत्य की धारणा। सत्य के विषय में तुम्हारी कैसी दृष्टि है? सत्य की धारणा को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा, श्रद्धा सत्य की धारणा को, सत्य के विषय में तूने कैसी धारणा बना रखी है? जैसी तुम्हारी सत्य के विषय में धारणा है वही तुम हो, बस, इसके सिवा कुछ नहीं। श्रद्धामयो अयम पुरुष। और सत्य के विषय में धारणा तुम्हारी कैसी होगी? क्या जैसी तुम्हारी बुद्धि है वही ना। Everybody has his own state of mind and he can speculate, he can imagine, he can think according to that, and he can act according to that, because our action is nothing but projection of our thought. हमारी क्रियाएं जो हैं हमारे विचारों की अभिव्यक्ति हैं। हम वैसे सोचेंगे, वैसे विचारेंगे, वैसे कल्पना करेंगे, वैसे संकल्प करेंगे। हमारा भगवान भी वैसे होगा जैसा हमारा विचार है। हाँ? जैसा हमारा विचार है वैसे हमारा भगवान होगा। तो यदि हमारा विचार शुद्ध है, प्योर है,
है, हमारे भगवान भी महान होंगे। और यदि हमारा विचार इम्प्योर है तो हमारे भगवान महान नहीं हो सकते, हमारे भगवान भी छोटे से होंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि यदि तुम्हारी बुद्धि शुद्ध है तो तुम्हारी श्रद्धा शुद्ध होगी, अच्छी धारणा करोगे। तो बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? भगवान ने कहा जैसा आहार करोगे। तो वहां पर 3 प्रकार के आहार बताए, सात्विक, राजस और तामस। अब वो तामस 3 प्रकार के जो आहार हैं, सात्विक, राजस, तामस, वो कैसे आहार होते हैं? क्या देखो समय हो गया तो कल बता देंगे, अभी तो कल यहाँ मिलेंगे ना, ठीक है ना? हाँ, मेरे को इधर से घड़ी दिखा रहे हैं बहुत देर तक, पहले आधा घंटा तो अंग्रेजी भी बोल रहे फिर आधा घंटा से ज्यादा हो गया आपको इस भाषा में बोलते समझाते। तो अब आप तीनों इन विषयों को कल सुनना मेरे से, अपने और साथियों को आप बताइए। यहाँ केवल वेजिटेरियनिज्म पर चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ तो आप अपने जीवन की एक फिलॉसफी सुन रहे हो। वेद आपको क्या कहता है, शास्त्र आपको क्या कहता है, गीता आपको क्या कहती है, आपके पूर्वज कैसे रहते थे, वो कहानी मैं आपको सुनाने आया। और उसको सुनिए, उसको मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, अपने जीवन में धारण कीजिए। आप अंग्रेजी जानते हैं तो अंग्रेजी में, हिंदी जानते हैं तो हिंदी में, संस्कृत में आप जानते हैं तो उसमें मैं बता सकता हूँ, और डच आप जानते हो, मुझे नहीं आती, आपसे मैं पीछे हूँ। प्रार्थना कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।